Yeah, good evening, everyone. Very warm welcome to this wonderful Digitalk session. I'm really sorry for this delay of the session. There is a technical glitch. So, because of that technical glitch, the session is delayed by 10 minutes. So, I'll not waste much of the time. So, I'll just tell about the session. So, today we have a session on India growth story, right? So, India is a country of full of opportunities. It's a land of opportunities. Today we want to understand that the same in our business context. So just to understand the same in our business context, today we have a very wonderful presentator, Mr. Pankaj Tibrewal from Kotak Mutual Fund. So if I just give about a brief introduction of Pankaj ji, right? So Pankaj Tibrewal is a graduate in commerce from St. Xavier College, Kolkata. He did his master's degree in finance from Manchester University. He has a vast experience of 18 years of working in this fund management area. Prior to joining Kotak Mutual Fund, he was with Principal PNB Asset Management Company in his fund management team. Right. So without wasting too much of time, because we have already delayed the session by 10 minutes, I'm extremely sorry for the same. I welcome to Pankaj ji for the session to take forward the ahead the session. So over to you, Pankaj sir. I think so. You are the person to whom everybody is waiting to listen, right? I'll come back to you for a Q&A session. So just before I leave, I just want to tell, okay, any question as a partner, you have any question in your mind. So there is a link already given to you to ask the question. I'll take your questions in the last. So over to you, Pankaj sir. Okay. Good evening, everybody. Sorry for the delay. I think there was some technical issue. I hope I am being loud and clear. Uh, I don't know because I couldn't hear the speaker speaking right now before me. So just wanted to clarify that whether I'm loud and clear. If somebody can help me understand whether it's reaching to all of you. Otherwise, if I start and nobody is able to hear, then it will be a problem. Can anybody give me a check on that? We can hear you, Is Pankaj my ji. We voice can hear audible? you. We can hear you. You are clearly audible. You are audible. Hello. Yeah, it's okay. Okay, great. Thank you. So I think I'm loud and clear now. So friends, I think before we talk about the India growth story, I think everybody in their mind have questions on market क्या लगता है, what is the future and क्या लगना है, कैसे करना चाहिए market में. So friends, अगर आप देखें तो almost पहले यूएस से स्टार्ट करते हैं. यूएस में सिचुएशन इज नॉट दैट ग्रेट. आपने लास्ट मंथ देखा और हम लोग ये काफी टाइम से सोच रहे थे कि भाई अगर ब्याज दर 0 से 5% जाती है तो क्यों नहीं कोई एक्सीडेंट या क्रेडिट इवेंट हुआ. एंड आज आपने देखा कि लास्ट मंथ की 3 से 4 बैंक यूएस में रीजनल बैंक्स अंडर द वाटर चले गए. दो की गवर्नमेंट और वहाँ की फेड ने अश्योरेंस दिया कि कोई भी डिपॉजिटर्स का मनी नहीं जाएगा. बट एक माहौल खराब हुआ कि क्रेडिट इवेंट हुआ है और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि वहाँ डिमांड स्लो डाउन काफी स्ट्रांग है और ये जो ब्याज दर बढ़ी है उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे लैग के साथ हमें ग्रोथ पर भी दिखाई देगा. सो क्लियरली यूएस में एक वरी का पॉइंट है. लोग बोल रहे हैं कि लेबर मार्केट अनएम्प्लॉयमेंट रेट 50 ईयर लो पर है, लेकिन हमारे हिसाब से वो लैग डेटा है, वो लीड डेटा नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे से ग्रोथ स्लो डाउन होती है कंपनियां अपनी जॉब काटती हैं और आईटी सेक्टर में हम स्पेशली वहाँ के सेक्टर में टेक सेक्टर में देख पा रहे हैं. क्लियरली व्हेन यू मूव फ्रॉम यूएस टू Europe, I think situation is still also bad there. They didn't expect that Russia switching off gas from Russia will be such a big thing. The gas cost has gone through the roof. चाहे वो हाउस होल्ड हो या इंडस्ट्री हो, सबके लिए एनर्जी कॉस्ट बहुत बड़ी कॉस्ट होती है एंड वो काफ़ी बढ़ गया है. प्लस वहाँ डेमोग्राफिक्स एटलीस्ट देखें तो एजिंग पॉपुलेशन है, ग्रोथ डिक्लाइन कर रही है एंड वहाँ भी कहीं ना कहीं ओवरऑल स्ट्रक्चरली आप देखें तो तकलीफ है. अगर आप चाइना में आते हैं तो चाइना अलग ही एक सेटिंग पर बैठा है. $17 ट्रिलियन की जीडीपी है. लास्ट 30 साल सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन अगर वर्ल्ड में कोई था तो वो चाइना था और उन्होंने अपने सुप्रीमेसी और वर्ल्ड पावर में एक बहुत बड़ा दे हैव एस्टैब्लिश्ड देमसेल्फ. बट यहाँ से हमें लगता है कि चाइना की जो ग्रोथ है
वो रीसेट हो रही है। लास्ट 25-30 साल हमने उनको 5 से 8% के बीच में ग्रो होते हुए देखा, लेकिन अब हमारा अनुमान है कि वो ग्रोथ रेट रीसेट हो रहा है और यहाँ से 3 से 5% का ग्रोथ रेट रहेगा। और पहली बार होगा कि चाइना की पॉपुलेशन इस साल से डिक्लाइन करनी चालू करेगी, वर्किंग पॉपुलेशन जो कभी नहीं हुई थी। सो वहाँ पर रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा एसेट क्लास है और कहीं ना कहीं रियल एस्टेट में आज के दिन वहाँ पर तकलीफ है। आज 45 सिटीज को अगर आप देखें वहाँ के चाइना में, प्रॉपर्टी एकदम अनअफोर्डेबल हो गई है फॉर द यंग पर्सन हु टेक्स अ जॉब। तो इनकम टू जो प्रॉपर्टी रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है और कहीं ना कहीं यंग लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं एंड चाइनीज गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। प्लस मेरा ये मानना है कि 2020 के बाद वर्ल्ड में एक जियो पॉलिटिकल ऑर्डर चेंज हो रहा है। अ, 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 रूस और चाइना की फ्रेंडशिप काफ़ी नज़दीक आ गई है। दूसरे साइड में अमेरिका और यूरोप अपने एक साइड में है। तो एक बाईपोलर वर्ल्ड में हम जी रहे हैं और आने वाले समय में आप जब भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचें तो जियो पॉलिटिकल डिसऑर्डर को आप अपने थीसिस में जरूर रखिएगा, बिकॉज ये आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में काफ़ी चीज़ों को शेप करेंगे और ये मैं टच करूंगा जब मैं इंडिया के बारे में बात करूंगा। सो क्लियरली अगर आप चाइना में देखें तो ग्रोथ रीसेट हो रहा है। वो लोग अपने डिफेंस और सिक्योरिटी के बारे में ज़्यादा कंसर्न है। ताइवान लास्ट 3-4 दिन में वापस आप देख रहे हैं कि चाइना बहुत बड़ा सिक्योरिटी ड्रिल कर रहा है ताइवान को लेके। तो कहीं ना कहीं ये पूरा जियो पॉलिटिकल ऑर्डर 2020 के बाद इधर से उधर हो गया है और ये आने वाले समय में कहीं ना कहीं एक शंका का विषय रहेगा। अ, अगर आज मैं इस पूरे ग्लोबल एनवायरनमेंट के तौर पर इंडिया को देखता हूं तो कहीं ना कहीं इंडिया एक ओएसिस इन द डेजर्ट के रूप में आ रही है। 2020 से जब कोविड से हमने आपको कंडक्ट किया तो आज वर्ल्ड उसकी सराहना कर रहा है। जितने हम इन्वेस्टर्स से बाहर से मिलते हैं वो इंडिया के बारे में जो स्टैंड लिया उनके बारे में सराहना कर रहे हैं कि आपने पैसा प्रिंट नहीं किया, इन्फ्लेशन को आउट ऑफ कंट्रोल नहीं जाने दिया। और सिचुएशन ये है कि पहली बार हिस्ट्री में यूएस इन्फ्लेशन इज हायर देन इंडियन इन्फ्लेशन और जो इंटरेस्ट रेट का डिफरेंशियल है वो इंडिया और यूएस के बीच में 20 साल के लोएस्ट पॉइंट पर है। तो क्लियरली कहीं ना कहीं हमने अपने आप को लास्ट 3 साल में कंडक्ट अच्छे से किया। वर्ल्ड जियोपॉलिटिकली आज हमें एक न्यूट्रल पावर की तरह देख रहा है और जिस तरह हमने ओवरऑल अपने एक्सटर्नल पॉलिसीज को कंडक्ट किया, पूरा वर्ल्ड कहीं ना कहीं सरप्राइज और शॉक में है कि कैसे इंडिया इतना न्यूट्रल होकर इतनी स्ट्रांगली अपने स्टैंड ले सकता है। तो कहीं ना कहीं एक ये ओएसिस इन द डेजर्ट के रूप में आया है और कई सारे चेंजेस एट द ग्राउंड लेवल हो रहे हैं जो मैं आपको रूबरू कराना चाहता हूँ। बिकॉज ये अगर चेंजेस अगर आप समझ जाएं तो कहीं ना कहीं आपको इंडिया पर कॉल लेने की थीसिस बहुत इजी हो जाएगी। पहला अगर आप देखें तो हम और हमारी टीम ने लास्ट ईयर काफ़ी सारे ग्राउंड लेवल पर जाके लोगों से मुलाकात की, एंटरप्रेन्योर से मुलाकात की, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मुलाकात की एंड एंड द प्रॉब्लम इज कि आज अगर हम द गुड पार्ट इज कि हमने जितने एंटरप्रेन्योर्स को आज बुलिश देखा है कभी नहीं देखा। तो फ्रेंड्स कहीं ना कहीं एट द ग्राउंड लेवल जो काम में हो रही हैं वो अगर आप टीयर 2, टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में जाएं तो बहुत बहुत स्ट्रांग है। मैं आपको सेक्टर बाय सेक्टर थोड़े थोड़े एग्जांपल्स देता हूँ सो दैट आप लोग उससे है ना समझ पाए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं ये मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन में इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लेक्शन पॉइंट है और ये कोविड के बाद ही आया है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी इंट्रोड्यूस की है जिसका नाम है पीएलआई, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। करीबन 14-15 सेक्टर्स में ये स्कीम आएगी और करीबन 2 लाख करोड़ का निवेश होगा जिसका मल्टीप्लायर इफेक्ट जॉब में, ग्रोथ में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट ऑलरेडी जो एक सेक्टर में दिखाई दे रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आप लोग को याद हो 6 साल 7 साल पहले गोल्ड, कोयला, क्रूड और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे बड़ी इंपोर्ट आइटम्स में थी और ये हमारे लिए सबसे बड़ा चिंता का विषय था कि अगर
जिस पेस से इलेक्ट्रॉनिक्स इंपोर्ट हो रहे थे, फोन्स, टेलीविजन, एसीज, तो इलेक्ट्रॉनिक कहीं ना कहीं ये सबसे बड़ा इंपोर्ट आइटम बन सकता है, इवन क्रूड से भी ज्यादा। और गवर्नमेंट ने इसको बहुत सीरियसली लिया और उन्होंने एक बड़े क्षेत्र मोबाइल फोन में पीएलआई को इंट्रोड्यूस किया। आज उसका हम बेनिफिट देख पा रहे हैं। एप्पल के जो तीनों सप्लायर्स हैं, चाहे फॉक्सकॉन हो, पेजिट्रॉन हो या विस्ट्रॉन हो, तीनों ने अपने यूनिट्स को इंडिया में एस्टैब्लिश कर दिया है। और उनके पीछे पीछे जो पूरी इकोसिस्टम है वो भी इंडिया में अपने एस्टैब्लिशमेंट करने लगी है। चाहे वो डिस्प्ले गाय हो, मॉड्यूल गाय हो, कैमरा वाला हो, सब अपने देश में आके अपने सेटअप ऑपरेशंस कर रहे हैं। और क्लियरली आपने देखा कि लास्ट ईयर हमने 2022 में $10 बिलियन का एक्सपोर्ट किया। और मेरा ये फर्म ऑप्टिमिज्म है कि आने वाले नेक्स्ट 5 साल में ये $10 बिलियन, $100 बिलियन के आसपास का एक्सपोर्ट होगा। और जो 5 साल पहले हम सोच भी नहीं सकते थे, हो सकता है नेक्स्ट 5 साल में वो $100 बिलियन के आसपास का फोन्स एक्सपोर्ट कर पाए हम। क्लियरली जब ये पूरा इकोसिस्टम डेवलप होता है तो वैल्यू एडिशन भी बढ़ती है देश में। आज के दिन वो वैल्यू एडिशन 15 से 16% ही है, बिकॉज सारा चीज हम इंपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में हमें लगता है कि ये वैल्यू एडिशन 30 से 40% होगी खाली मोबाइल फोन्स में। और इसका सबसे बड़ा वैल्यू एडिशन पार्ट देश में इसको रखेंगे हम। सेकंड चीज अगर आप देखें तो जो चीज हम मोबाइल में देख रहे हैं सामने सामने, वो हम एयर कंडीशनिंग में भी देख रहे हैं। 4-5 साल पहले चाहे बड़ी सी बड़ी कंपनी हो इंडिया की, वो एसी को इंपोर्ट कर रही थी, चाहे उसका मॉड्यूल यूनिट हो, इंडोर यूनिट हो, कंप्रेसर हो। आज सिचुएशन ये है कि देश में 4 बड़ी कंप्रेसर की फैक्ट्रीज आ रही हैं। इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट सब देश में बनने लग गया है। और ऑलरेडी जो वैल्यू एडिशन 15-20% था, 50% पहुंच गया है। और मैं ऑप्टिमिस्ट साउंड नहीं कर रहा हूँ, बट मैं रियलिस्टिक साउंड कर रहा हूँ कि नेक्स्ट 3 साल में ये जो वैल्यू एडिशन डोमेस्टिक में हो रहा है उसका नंबर 50 से 80% से 90% हो जाएगा। और आप ना भूलें कि इस साल हम 1 करोड़ एसी बेचेंगे और आने वाले नेक्स्ट 10 साल में ये 1 करोड़ 2 से 3 करोड़ के बीच में नंबर रहेगा। और तब अगर हम ये काम करते तो बहुत लेट हो गई होती। तो ऑलरेडी वैल्यू एडिशन इसमें एसीज में भी दिखने लगा है और डोमेस्टिकली सब चीज बनने लगा है, चाहे वो कंप्रेसर हो या इंडोर यूनिट, आउटडोर यूनिट हो। तो कई सारे सेक्टर्स में इसी तरह अगर मैं देख रहा हूँ तो बॉटम अप बेसिस पर बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है। और आप में से अगर कोई भी व्यक्ति अगर श्री सिटी नहीं विजिट किया हो, जो कि आंध्रा में एक जगह है, आंध्रा और तमिलनाडु के बॉर्डर पर, तो प्लीज आप जाके एक बार देखिए कि क्या हो रहा है। 10,000 एकड़ का लैंड है जहां इंडस्ट्रीज बैठे जा रही हैं और 200 से 250 इंडस्ट्रीज की एप्लीकेशन नहीं आई है जो वहां पर अपना प्लांट छोटे रूप में, बड़े रूप में सेटअप करना चाहती हैं। और ये मैं सब आपको ग्राउंड लेवल फैक्ट बता रहा हूँ, सो दैट आप लोग खुद जाके इसे देख पाए और महसूस कर पाए कि इंडिया की इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी में कहाँ बड़ा चेंज हो रहा है। सेकंड अगर देखें तो कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट डिमांड हमारे लिए एक इंक्रीमेंटल कोविड के बाद निकल के आया है। क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियां, चाहे वो यूरोप की हो या यूएस की हो, उन्होंने ये एहसास किया कि वो चाइना पर लास्ट 20-25 साल से बहुत बढ़िया डिपेंडेंट थे अपने सारे सप्लाई चेन के लिए, मार्केट्स के लिए। एंड स्लोली स्लोली वो कंपनियां प्लस उस कंपनियों के जो गवर्नमेंट्स हैं, चाहे वो यूएस में हो या यूरोप में हो, वो ये चाह रहे हैं कि ये कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को डाइवर्सिफाई करें। और कहीं ना कहीं इंडिया इसके लिए एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव के तो रूप में आ रहा है। अगर हम देखें केमिकल्स में 5-6 साल पहले जो हुआ, प्रॉबेबली वो कई सारे क्षेत्र में हम आने वाले समय में देखेंगे। अगर आपको याद हो, 6 साल पहले हमारा केमिकल में टोटल मार्केट शेयर 1% का होता था, बट आज 3.5-4% का मार्केट शेयर हो गया है। और जिस तरह ये मार्केट शेयर बढ़ने लगा, तो आपने देखा कि बड़े बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, सबसे बड़ी वेल्थ क्रिएटर्स इस सेक्टर से निकली लास्ट 5-7 साल में। और कई कंपनियां 10 गुना, 20 गुना, 30 गुना हुई। तो एक टेलविंड बहुत जरूरी है अगर वेल्थ क्रिएशन आपको देखना है कोई भी कंपनी में। बिकॉज अगर टेलविंड नहीं हो तो बियॉन्ड द पॉइंट ग्रोथ कैन बिकम अ चैलेंज। सेम चीज अगर आप मोरबी में देखें, आप लोग सब गुजरात से हो, तो मोरबी में जो हो रहा है वो एक अजूबे के कम नहीं है। 5 साल पहले मोरबी का टोटल एक्सपोर्ट 4-4.5 हजार करोड़ होता था। मेरा अनुमान है कि इस साल हम जो 31 मार्च गया,
उसमें करीबन ये 4,500 करोड़ 16,000 करोड़ के ऊपर का नंबर होगा। और ये सारे कोई बड़ी कंपनियां नहीं कर रही हैं। ये साढ़े 550 गुजराती प्रमोटर्स हैं जो अपनी अपनी यूनिट चला रहे हैं, और ये 4,000 करोड़ के एक्सपोर्ट नंबर को 16,000 करोड़ के ऊपर ले गए हैं। और अगर आज मैं उनका टैग लाइन बताऊं तो आप सबको आश्चर्य होगा, चीपर देन चाइना, बेटर देन इटली। तो क्लियरली चाइना सबसे प्राइसिंग में कम है, और इटली का हम जानते हैं क्वालिटी मार्बल्स में और सब जगह वन ऑफ द बेस्ट में जाना जाता है। तो क्लियरली अगर अगर मैं चारों टाइल्स को रखता हूँ, एक मोरबी से, एक चाइना से, एक स्पेन से, एक इटली से, आप कोई भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ नहीं पहचान पाएंगे कि मोरबी का कौन सा है, इटली का कौन सा है, चाइना का कौन सा है। और हम आज के दिन इस प्रोडक्शन कॉस्ट पर हैं कि हम चाइना से भी चीपर हैं। तो क्लियरली कई सारे क्षेत्र में हम आगे प्रोग्रेस कर रहे हैं। एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी, बिकॉज चाइना और यूएस के बीच में जो तनाव चल रहा है उसके कारण हम काफ़ी बेनिफिट कई सेक्टर्स में कर पा रहे हैं। तीसरा चौथा सेक्टर जहां पर काफ़ी बड़ा काम हो रहा है वो है डिफेंस। और हमारा मानना है कि नेक्स्ट 5-7 साल डिफेंस सेक्टर काफ़ी बड़ा सरप्राइज हमें देगा। एक तो जियोपॉलिटिकल डिसऑर्डर है जो मैंने स्टार्टिंग में बात की, और आज कोई भी कंपनी एमुनिशन के क्षेत्र में है तो उसके माल हॉट केक की तरह बिक रहे हैं, बिकॉज सारे कंट्रीज को अपना आर्म्स एमुनेशंस की इन्वेंट्री को ऊपर करना है, और सप्लायर नहीं मिल रहे हैं जो ये सप्लाई कर पाए। पहले रूस था जो सप्लाई करता था वर्ल्ड को, लेकिन कई सारी कंट्रीज ने अब रूस पर सैंक्शन लगा दी है, और वो इंडिया जैसी कंट्री की तरफ देख रहे हैं कि आप हमें सप्लाई कर पाओगे क्या। और पहले हम सोचते थे कि सारी डिफेंस की कंपनियां खाली गवर्नमेंट को केटर करेगी, बट अब जिस हिसाब से एक्सपोर्ट डिमांड आ रहा है तो कहीं ना कहीं ये हमारे लिए एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में है। बट डिफेंस अगर इंडिजिनाइजेशन हम कर पाए, जिस तरह गवर्नमेंट प्रयास कर रही है लास्ट 3-4 साल से, तो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र होगा और ये इंडस्ट्रियलाइजेशन को एक बहुत बड़ा बूस्ट देगा। और इस तरह मैं देख रहा हूँ कई सारे सेक्टर्स आने वाले समय में, चाहे वो हाइड्रोजन हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, इलेक्ट्रिक की बैटरीज की पूरी इकोसिस्टम हो, कार्बन कैप्चर हो, विंड हो, सोलर हो, ये सारे इंडस्ट्रीज नेक्स्ट 5-10 साल में इंडिया में अपने आप में एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम डेवलप करेंगे जो अभी तक नहीं है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स और इंडस्ट्रियलाइजेशन वाली थीम बहुत स्ट्रॉन्ग थीम रहने वाली है। ये एक मेगा ट्रेंड है, और इस मेगा ट्रेंड को मतलब 1-1.5 साल हो गया है, लेकिन आने वाले 5-7-10 साल जो हम वेट कर रहे थे लास्ट 12-15 साल की मैन्युफैक्चरिंग कब इंडिया में जागे, वो मेरे को लगता है मोमेंट आ गया है। और अगर मैन्युफैक्चरिंग अच्छी करेगी तो ऑटोमेटिकली अपने आप मल्टीप्लायर इफेक्ट से कंजम्पशन अच्छा करेगा। सो क्लियरली हमें लगता है कि ग्रोथ साइकिल में इस बार सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पार्ट है मैन्युफैक्चरिंग, और ये हमें एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट प्रोवाइड करेगा। सेकंड अगर आप देखें तो दूसरी चीज है जो मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ, वो है डिजिटलाइजेशन। आई थिंक देश में लास्ट 5-6 साल में एक बड़ी चेंज को हम महसूस कर पा रहे हैं। और ये चेंज ऐसी चेंज है कि चाहे कोई भी आ जाए, इस चेंज को आप रिवर्ट नहीं कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि 100 करोड़ बैंक अकाउंट, 100 करोड़ आधार कार्ड और 100 करोड़ मोबाइल कनेक्शन अपने आप में एक डेडली कॉकटेल के रूप में है। और मुझे लगता है कि जिस तरह हम टैक्स कलेक्शन में लास्ट 3 साल से बॉयंसी देख रहे हैं, ये इसलिए हो पाया है क्योंकि हमने सब चीज को लिंक एक साथ कर दिया है। अब चोरी की और टैक्स इवेजन की कोशिश करने वालों को भी प्रॉब्लम है, बिकॉज सब चीज अगर आपका लिंक्ड है तो आप ₹2 डिविडेंड भूल सकते हो, बट जब 26 AS और वाला जो रिटर्न का फाइलिंग का समय आता है, गवर्नमेंट आपको बता देती है कि भाई ₹2 का डिविडेंड भी आपको फाइल करना है। तो इस तरह का लिंकेज हो गया है। प्लस कहीं ना कहीं एक बिहेवियर चेंज है कि पहले हम कैश में पैसा दे देते थे, चाहे आज आपकी घर में डोमेस्टिक हेल्प आ रहे हो, या आप मिठाई दुकान में, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, या आपका ड्राइवर को सैलरी देनी हो, आप सीधा ट्रांसफर करते हो, चाहे वो जीपे हो या पेटीएम हो। और कैश आजकल वॉलेट में, अगर आप में अपने इर्द गिर्द देखें
तो किसी के पास भी कोई बड़ा कैश नहीं होता है, बिकॉज वॉलेट का कैश मतलब क्रेडिट कार्ड या आपके मोबाइल इज योर कैश नाउ। ये एक बड़ा चेंज इसलिए है क्योंकि आने वाले समय में कच्चे पक्के का पूरा डिस्टिंग्विश मिस हो खत्म हो जाएगा, और धीरे धीरे लोग अगर आपके सारी इनकम पक्के में कन्वर्ट होगी तो आप टैक्स की चोरी कम कर पाओगे। आप इमेजिन करिए, कोई हलवाई का दुकान है, मिठाई का दुकान हो, 5-10 साल पहले वो आधा पैसा से ज्यादा कैश में अपनी रोकड़ी लेता था और कोई भी अथॉरिटीज उसको ट्रैक नहीं कर पाती थी। लेकिन अगर आज उसका 50-60% डिजिटल माध्यम से अगर उसके कैश कलेक्शन आएगा, तो कहीं ना कहीं आईटी वाला उसको भी ऑब्जर्व कर रहा है, और अगर वो टैक्स नहीं दिया तो सीधा उसके पास नोटिस आएगा कि आप टैक्स क्यों नहीं दे रहे। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल चेंज है फ्रेंड्स, इसे आप न नकारें, बिकॉज ये जो डिजिटल स्टैक है ये कोई भी कंट्री में अभी तक इस तरीके से यूज नहीं हुआ जो इंडिया में हो रहा है, और हम सब इसके गुजरे हैं लास्ट 2-3 साल में। आप इमेजिन कर सकते हो कि 140 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगा, नॉट इवन वंस, ट्वाइस और मे बी मेनी टाइम्स थ्राइस, और पूरे एक मोबाइल के ऊपर और एक आधार कार्ड के कारण जैसे ही सुई आपके स्किन में जाती थी, मोबाइल पर आपका पूरा सर्टिफिकेट आ जाता था। आज भी हमारे फ्रेंड्स जो यूएस में हैं वो फिजिकल सर्टिफिकेट लेके चलते हैं और उनके पास डिजिटल सर्टिफिकेट नहीं है। ये मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है, बिकॉज आज गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसीज एग्जीक्यूट करना चाहती है ग्राउंड पर, तो वो हफ्ते 10 दिन में कर सकती है विदाउट एनी लीकेज, एंड ये पूरे देश में आप कर सकते हो। तो मुझे लग रहा है कि ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन है, और आने वाले नेक्स्ट 5-10 साल में काफी सारे बिजनेसेस, काफी सारे पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशंस इसके कारण बहुत इजी हो जाएंगे और स्केलेबिलिटी बहुत फास्ट हो जाएगी। तो ये जो आईटी स्टैक का जो बड़ा चेंज है, ये मेरे हिसाब से अपने आप में एक बड़ा गेम चेंजर है। थर्ड, अगर आप देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है वो बहुत ही सराहनीय है, और कोई भी कंट्री में अगर आप लास्ट 50 साल में या 60 साल में जाके देखें, जब वो प्रोग्रेस होता है तो उसके लिए फर्स्ट आपको फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर आपको इंटेलेक्चुअल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, फिर आपको डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। हम आज के दिन ये तीनों में काफी अच्छा काम कर रहे हैं। मैं ये बोलूंगा कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं बोलूंगा 67 = 10। आप बोलोगे पंकज जी क्या ये मैथमेटिक्स आप समझा रहे हो, 67 10 = 10 कैसे हो सकता है? फ्रेंड्स, जो चीज पूरे हमारे यहाँ 67 ईयर्स में काम नहीं हुआ वो हम 10 साल में कर रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारे जो पोर्ट्स थे, एयरपोर्ट्स थे, और यू नो पावर प्लांट्स थे, सब चीज आज जो 10 साल 67 ईयर्स में हम 2013 तक नहीं किए, वो आज हम 10 साल में लास्ट 2013 से 2023 तक हमने किया है। जस्ट उसकी ग्लिम्स बताना चाहूंगा कि अगर आप देखें कि हमारा जो रोड हाईवे था वो करीबन मोटा मोटी 80,000 किलोमीटर तक का था 2013 तक। आज ये नंबर 1,60,000 1,65,000 के आसपास है। टॉप 10 जो इंडिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटीज है वर्ल्ड की, उसमें से 6 इंडिया की है, चाहे वो हैदराबाद हो, बैंगलोर हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, चेन्नई हो या कोलकाता हो। 2005 में पूरे देश का जो जीडीपी था, आज वो महाराष्ट्र का जीडीपी है। 2000 में पूरे देश का जो जीडीपी था, आज वो तमिलनाडु, गुजरात और कर्नाटका का जीडीपी है। इसका मतलब आने वाले नेक्स्ट 10-15 सालों में जो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हमने क्रिएट की है, एक एक स्टेट आज जो इंडिया की जीडीपी है उससे ज्यादा या उसकी इक्विवेलेंट हो जाएंगी। और इसका क्लियर है कि फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट 5-10 साल से हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस है, और क्लियरली हमने देखा कि गवर्नमेंट ने इस बार भी बजट पर 10 लाख करोड़ रुपया एलोकेट किया है ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, जस्ट टू पुट नंबर्स इन पर्सपेक्टिव, ये 10 लाख करोड़ अगर मैं 1971 से 2005 देखता हूँ, ऑलमोस्ट 34-35 साल, तो पूरा 34 साल का क्यूमुलेटिव एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट का उस समय 10 लाख करोड़ था। और आज हम साल का 10 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर पर गवर्नमेंट का खर्चा कर रहे हैं। इसके ऊपर प्राइवेट सेक्टर अलग है
प्राइवेट सेक्टर 10-12 साल से बहुत डरी हुई थी, वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन अब कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 74% पर है, उनकी बैलेंस शीट्स बहुत अच्छी हैं, डिमांड की विजिबिलिटी बेटर है। और इस साल मुझे लगता है कि आफ्टर ऑलमोस्ट 12-13 ईयर्स कि हम 5 से 6 लाख करोड़ के बीच में प्राइवेट केप सेक्टर केपेक्स में फंसे हुए थे, अब वो 5-6 लाख करोड़ करीबन निकल के करीबन 7 से 7.5 लाख करोड़ आएगा। तो फ्रेंड्स, 1 ट्रिलियन हमें 67 साल लगा, सेकेंड ट्रिलियन को 8 साल लगा, थर्ड ट्रिलियन को 5 साल लगा, मे बी फोर्थ ट्रिलियन को 6-7 साल, 6 साल 7 साल जो भी लगे, लेकिन कहीं ना कहीं इस पेस पर हम अर्ली नेक्स्ट ईयर जर्मनी को ओवरटेक कर लेंगे फोर्थ पोजीशन के लिए, और मे बी 2027-28 तक हम जापान को ओवरटेक कर लेंगे थर्ड पोजीशन के लिए। तो ये स्टोरी हमारे सामने प्ले आउट कर रही है, और मेरा ये मानना है 2024-25 से लेके 2029-30 तक या मे बी 31-32 तक ये इंडिया का गोल्डन पीरियड रहेगा। अगर इस पीरियड को हम मिस कर दिए इन्वेस्टमेंट के लिए, तो कहीं ना कहीं हाइंडसाइट में अपने आप को हम गिल्टी महसूस करेंगे, माफ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो एक ट्रेजेक्ट्री इंडिया की बन रही है, और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है, चाहे रेलवेज में हो, रोड्स में हो, पोर्ट्स में हो, एयरपोर्ट्स में हो, और आने वाले टाइम पर जो हम केटर कर पाएंगे, उसे हमें काफ़ी मेरे को स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि नियर टर्म में जो भी वीकनेस आए मार्केट्स में, उसे अपॉर्चुनिटी के तौर पर लेना चाहिए। तो क्लियरली फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने आपको इंटेलेक्चुअल कैपिटल के बारे में बताया ही, बिकॉज आज इंडिया ही एक स्टेट है, नेशन है जहां 1 मिलियन इंजीनियर्स आप प्रोड्यूस कर सकते हैं चाइना के बाद, और इंटेलेक्चुअल कैपिटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट ऑलमोस्ट 25-30 साल हम विश्व में 21% जो वर्किंग पॉपुलेशन होगी वो इंडिया से होगी, 20% जो मिडिल क्लास होंगे वर्ल्ड के वो इंडिया के होंगे। तो ये एक बहुत बड़ा प्लैनेट होने वाला, कंट्री होने वाला है प्लैनेट पर, जो कंज्यूमर ओरिएंटेड होगा। मैन्युफैक्चरिंग की तरफ हम धीरे धीरे अपना बढ़ रहे हैं, और यंगेस्ट पॉपुलेशन कंट्री होगी। आज सारे कंट्री वर्ल्ड में एज हो रहे हैं, हमारा एवरेज डेमोग्राफिक्स वापस मैं ये रिपीट करूंगा 28 साल है, और आने वाले नेक्स्ट 20-25 साल हमारी वर्किंग पॉपुलेशन वन ऑफ द बिगेस्ट रहने वाली है। सो क्लियरली जब मैं ये सब चीज़ों को देखता हूँ, प्लस एक स्टेबिलिटी देखता हूँ सेंटर पर, प्लस जो रिफॉर्म्स पॉलिसी के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर हो रहे हैं, एक ग्लोबल वॉइस जो आ रही है हमारे पास, मुझे लगता है कि अगर हम कोई बड़ा सेल्फ गोल या मिस्टेक्स ना करें, तो नेक्स्ट 8-10 साल हमें सरप्राइज कर सकता है ऑन वेरियस अदर थिंग्स। एंड मुझे लगता है इस ग्रोथ जर्नी में कई सारे वेल्थ क्रिएटर्स क्रिएट होंगे। आप सबको ये याद होगा 1985-1990 में जब आईटी के बारे में कोई बात नहीं करता था, और उस समय सारी बड़ी कंपनियां आज आईटी की स्टार्टअप्स के रूप में थी। 85-90 में कोई जानता नहीं था कि ये कंपनियां इतनी बड़ी बन जाएंगी कि आज 20-30 साल बाद वो वर्ल्ड लीडर्स होंगे आईटी सेक्टर में, बट हमारे सामने ये चीज हुआ। सेम चीज मुझे लगता है कि आज हम विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हैं, बट कई सारे नए सेक्टर से वेल्थ क्रिएटर्स न्यू वाले जनरेट होंगे, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कैपिटल गुड्स हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन हो, एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी हो, फाइनेंशियल्स हो, फार्मा हो। कई सारी कंपनीज ऐसी निकलेंगी जो वर्ल्ड प्रोमिनेंट अपना काम करेंगी, और इसके कारण मुझे लगता है जर्नी हैज जस्ट बिगेन, जहां पर हमारे को लगता है 4 ट्रिलियन और ऑन द वे टू 10 ट्रिलियन, चाहे वो 2032 तक हो या 2035 तक हो, ये हमारे सामने होगा, और उसमें हम देखेंगे कि मार्केट और कई सारे स्टॉक्स अलग स्केल और साइज पर पहुंचेंगे। सो क्लियरली मुझे लग रहा है कि इट्स अ स्टोरी विच यू कांट मिस। प्लस अगर आप देखें तो हमारी ओन एक कंपनी है अमूल, उनके अगर आप एनुअल रिपोर्ट 2022 की रिपोर्ट में जाएं, तो उनका लास्ट ईयर टर्नओवर था 61,000 करोड़, 61,000 करोड़, और उन्होंने लिखा है कि हमारा विजन है 2047 तक, जब हम अपना 100th ईयर सेलिब्रेट कर रहे हो ऑफ इंडिपेंडेंस का, कि अमूल ग्रुप 18 लाख करोड़ की कंपनी हो, 220 बिलियन डॉलर की रेवेन्यू कंपनी हो। और ये मैं खुद अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, आप लोग जाके अमूल की एनुअल रिपोर्ट पढ़ सकते हो, और उसमें उन्होंने लिखा है कि हम 7 बिलियन डॉलर की टर्नओवर है, जो 61,000 करोड़ के आसपास, हमें 220 बिलियन डॉलर मतलब 18 लाख करोड़ की कंपनी बननी है। और क्लियरली आपने इस वर्ल्ड कप फुटबॉल में देखा ऑन अ लाइटर नोट कि अर्जेंटीना जीता किसके कारण, बिकॉज अमूल उसका स्पॉन्सर था। सो क्लियरली कहीं ना कहीं
ये सारी चीजें हमारे सामने हो रही है और हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म में काफी ऊपर नीचे होगा, जो मैं अभी टच करूंगा। बट ये शॉर्ट टर्म के नीचे ऊपर में आप लॉन्ग टर्म व्यू को न गवारें, और जब भी आपको वीकनेस मिले मार्केट में, उसको कहीं ना कहीं यूज करें। और क्लियरली फ्रेंड्स, अगर लास्ट 8-9 साल में आप देखो तो एक कहीं ना कहीं बड़ा चेंज हुआ है। हम 10वें नंबर पर थे साइज ऑफ जीडीपी में, आज 5वें नंबर पर है। हमारा शेयर ऑफ ग्लोबल जीडीपी 2.5% था, आज 3.5% के आसपास है। हम ऑटो प्रोडक्शन में 7वें नंबर पर थे, आज 3रे नंबर पर है। मोबाइल प्रोडक्शन में हमारा नंबर 12वां था, और आज सेकंड बिगेस्ट प्रोडक्शन मोबाइल फोन का इंडिया में हो रहा है। नंबर ऑफ यूनिकॉर्न्स खाली 4 थे 2014 में, आज 115 से 20 है। हमारा वेट इमर्जिंग मार्केट में खाली 7% था, आज वो डबल होके 15% हो गया है, बिकॉज बाकी चाइना, रशिया, ब्राजील सबके वेट्स कम हो गए हैं। हम ओवरऑल ब्रिक्स में करीबन 14% वेट था, आज 30%, 1/3 वेट है। और इंक्रीमेंटली मुझे लगता है कि ये जो 3.5% हमारा ग्लोबल जीडीपी में शेयर है, वो इंक्रीमेंटल बेसिस पर हम वर्ल्ड में 20 से 25% इंक्रीमेंटल ग्रोथ कंट्रीब्यूट करेंगे वर्ल्ड जीडीपी ग्रोथ को। सो क्लियरली कहीं ना कहीं साइज, स्केल वो हमारे सामने दिख रहा है। चाहे तो हम नकार सकते हैं उसको, या एक्सेप्ट कर सकते हैं कि हाँ, ये फैक्ट हमारे सामने चेंज हो रहा है। और मुझे तो ग्लास हमेशा हाफ फुल दिखती है, आज एम्प्टी नहीं दिखती है। सेकंड, अगर मैं देखूं कि चैलेंजेस क्या है, चैलेंजेस बहुत हैं। चैलेंजेस हैं कि भाई हम कोई गलती बड़ी ना करें, इस ग्रोथ मोमेंटम को और इस विश्वास को जो वर्ल्ड ने हमें ऊपर दिया है, उसे हम और आगे बढ़ाएं। सेकंड की करंट अकाउंट डेफिसिट हमारे लिए एक प्रॉब्लम है, क्योंकि तेल आज भी हम सबसे ज्यादा इंपोर्ट डिपेंडेंट है, और तेल अगर $100-150 होता है तो वो हमारी अर्थव्यवस्था को कहीं ना कहीं डैम्पनिंग करता है शॉर्ट टर्म के लिए। प्लस अगर हम देखें तो बैंकिंग सिस्टम आज स्ट्रांग है, उसे आने वाले समय में भी स्ट्रांग रखना है। तो कई सारे चैलेंजेस आने वाले समय में रहेंगे, बट अगर हम उस चैलेंजेस को ठीक से निकाल पाए तो मतलब हिस्ट्री वुड बी काइंड टू अस। एंड वार वार ये आया कि दिस इज द राइज फॉर इंडिया, पहले भी हमने ये सुना है, पर कहीं ना कहीं हमने छोटी छोटी मिस्टेक्स की और ये ग्रोथ मोमेंटम टेपर डाउन हो गया। होपफुली दिस टाइम वी विल नॉट डू द सेम मिस्टेक्स अगेन। और अगर हम देखें तो मार्केट्स में नियर टर्म में हम कॉशियस थे लास्ट 8-9 महीने से, लेकिन 18 महीने हो गए। सितंबर 21 में मार्केट पीक किया था, उसके बाद मार्केट में रिटर्न नहीं बना। और कहीं ना कहीं लोगों के अब थोड़ा फटीक दिख रहा है, चाहे वो इन्वेस्टर हो या रिटेल इन्वेस्टर हो या एचएनआई भी हो, क्योंकि 18 महीने से जीरो रिटर्न है और सामने फिक्स्ड इनकम डिपॉजिट्स के रेट्स बढ़ने लगे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि हर जगह क्वेश्चन आने लगा है कि इक्विटी में क्यों रहना है। मुझे लगता है कि 18 महीने मतलब निकल गए, मे भी 6-8 महीने और निकल जाए, लेकिन ये 18 महीने को आप ये मत समझिए कि फ्लैटिश मार्केट तो जीरो रिटर्न मार्केट, एक्चुअली मार्केट डिक्लाइन किया है, बिकॉज ये 18 महीने में अर्निंग्स ग्रोथ करीबन 16% था, और सामने डॉलर डिवैल्यू हुआ। तो हम ग्लोबली अगर डॉलर टर्म्स में देखें तो 20% डाउन है। और अगर आप सितंबर अक्टूबर 2021 से अभी तक का देखें तो S&P 500 जो यूएस की मार्केट के सबसे इंपॉर्टेंट इंडेक्स है और हमारे में कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। तो क्लियरली लास्ट 3-4 महीने में हम बहुत अंडर परफॉर्म किए हैं वर्ल्ड को। और 2022 का जो बड़ा आउट परफॉर्मेंस था, जहां से पूरे मार्केट वर्ल्ड में नीचे जा रहे थे, खाली हम काफी स्टेबल और आगे बढ़ रहे थे, तो वो लास्ट 3 महीने में पूरा करेक्ट हो गया है। और क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो आप देखें तो वो 20-25% कहीं ना कहीं डाउन है। तो करेक्शन और फ्रॉथ निकलना चालू हो गया है। हमें लगता है नेक्स्ट 6 महीने में हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी अपने इक्विटी एलोकेशन को बढ़ाने के लिए। और कहीं ना कहीं मेरी टोन और हमारी टोन ऑफ कॉशियसनेस धीरे धीरे कम हो रही है, और हमें लगता है आने वाले समय में इक्विटी एलोकेशन को 6 महीने में बढ़ाना चाहिए, और इसका रिटर्न इस साल नहीं बट 2024-25 में हमें मिलेगा। तो हमारा यही स्टांस है कि कोई भी अच्छी कंपनी जो हम खरीदना चाहते थे, जो हमें नहीं वैल्यूएशन के कारण खरीद पा रहे थे, वहाँ कहीं ना कहीं फ्रॉथ निकल रहा है, अर्निंग्स डिसअपॉइंटमेंट आएगी, मार्केट में नॉइज बहुत रहने वाला है, ग्लोबल लोकल। दो तिमाही में और भी नंबर्स कटेंगे, और हमारा मानना है
2024 की अर्निंग्स निफ्टी की 900 से 920 रहनी चाहिए, और नेक्स्ट ईयर ये नंबर 1000 के ऊपर रहना चाहिए। तो अगर मैं 6 महीने बाद देखता हूँ, जब सितंबर अक्टूबर में हम होंगे, तो क्लियरली लोग और मार्केट 2025 के एस्टिमेट पर काम करेंगे। उस समय अगर निफ्टी का ईपीएस 1000 के ऊपर रहा, तो हम करीबन 17 सवा 17 टाइम पर हैं, जो महंगा ज़्यादा नहीं है। और क्लियरली तीन चीज़ देखते हैं जब हम मार्केट की बॉटम को बात करते हैं। पहला, कोई भी मार्केट बॉटम क्रेडिट इवेंट के पहले नहीं हुआ। तो इस क्रेडिट इवेंट आपने लास्ट मंथ में देख लिया कि 5 बैंकें वर्ल्ड ओवर अंडर चली गई, मे भी एक दो बैंक और चली जाए, तो क्रेडिट इवेंट हो गया। सेकंड है कि भाई जो एस्टिमेट होते हैं प्रॉफिट के, वो 5-6% ही रिड्यूस हुए हैं निफ्टी में। कोई भी मार्केट बॉटम तब तक नहीं करता जब तक 10-15% अर्निंग नहीं कट जाए, बिकॉज ऑफ वॉट वेरियस रीजंस। वो अभी भी थोड़ा सा हमें लगता है बाकी है, जो नेक्स्ट 1-2 तिमाही में हो जाएगा। और तीसरा ये होता है कि मार्केट कैप टू जीडीपी आज हम 90% पर हैं, लेकिन मोटा मोटी प्रोग्रेस जब बॉटम आउट होता है मार्केट, तो वो 70-75% पर बॉटम आउट होता है। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट 6 महीने में ये सब अगर माइलस्टोन्स अचीव होते हैं, तो मार्केट हमें संकेत देगा कि मार्केट्स बॉटम आउट कर रहा है, और हम उस 6 महीने के लिए वेट, मतलब टाइम के लिए वेट कर रहे हैं, जहां पर मार्केट हमें रोज कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी दे पाएगा। सो फ्रेंड्स, आई थिंक दैट नियर टर्म में जो हमारा कॉशियसनेस था वो धीरे धीरे कम हो रहा है। और नेक्स्ट 6 महीने आप अपना होमवर्क तैयार रखिए, आप अपने क्लाइंट से रेगुलर बात करते रहिए, बिकॉज आप 6 महीने बाद सोचेंगे कि क्लाइंट इमीडिएटली आपके बोलने पर डाल दे, वो कभी नहीं होगा। तो क्लियरली उनको बड़ी पिक्चर के बारे में बात करिए, और नियर टर्म में अपने आप को अजाइल रखिए, अपने आप को रेडी रखिए, बिकॉज जिस दिन भी मार्केट में अपॉर्चुनिटी आएगी वो आपको बोल के नहीं आएगी, और उस समय अगर आपका होमवर्क नहीं किया हुआ रहेगा, तो आप कहीं ना कहीं ये अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देंगे। सो क्लियरली नेक्स्ट 6 महीना इज द टाइम टू स्टार्ट इंक्रीजिंग इक्विटी एलोकेशन with a view of 2024 and 25 in mind. And don't forget, my view is that 2024-25 onwards, India for the next many years will see a golden period of growth, of many other reforms. And if we miss that opportunity, probably history won't be very kind to us. So there's where I stop, friends. I've given you an overview on the short term, and I have laid down various things which are happening in India at the ground level. I have not seen so much of optimism for a very, very long time among entrepreneurs in the country. And hope we don't derail that, we take the momentum only forward. And if that we can do, I think we will be surprised on the overall market reaction and the wealth creation which can happen. So I'll stop here, and if anybody has any questions, I'll be more than happy to answer. Thank you so much. Thank you, Pankaj sir, for your wonderful presentation. As usual, your talk is very data oriented, and the talk is always surrounded by a lot of data points. So you spoke about lots of things about the structural reforms which has happened in our country. You have given a very nice example of Sri City and Morbi in Gujarat. टैक्स कलेक्शन के बारे में आपने बात किया. You talk about linkage in PAN and Aadhaar, which is going to benefit to all 140 crore of population in this country. And I'm really happy you spoke about the country's infrastructure. So you defined the infrastructure in three ways: physical infrastructure, intelligence infrastructure, and digital infrastructure, right? So still there are lots of questions in partners' mind. Our distributors are regularly talking to all the advisors, right? And they are talking like they are the people. They are the people. They keep convincing the customer to invest more and more in this market, an equity market, right? Yes, you rightly said कि 18 महीने से market flat है, अच्छा रिटर्न नहीं आया. Even the fixed income market is giving more return than the equity market now. और लोगों के मन में बहुत सारे कंसर्न भी हैं, राइट? तो एक वैलिड क्वेश्चन जो लोगों ने पूछा है, आई एम श्योर कि आपने वो बहुत सारे आंसर, बहुत सारे डेटा पॉइंट्स के साथ दिया है. फिर अगेन मैं फिर भी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ. इसी का एक सवाल है कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ जनरल इलेक्शन व्हिच इज इन द नेक्स्ट ईयर, राइट? सो ऑलरेडी 18 महीने खराब गया है. आप बोल रहे हो 6 महीने में इक्विटी में पोजीशंस बनाना चाहिए लोगों को, पर नेक्स्ट ईयर इलेक्शन भी है. So what is your strategy into it? As a general investor, what should be the strategy for them? You already said कि 6 महीने में पैसा डालो. मुझे नहीं लगता इलेक्शंस बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगी. दो पॉलिटिक्स है, कुछ भी बोलना मुश्किल है, बट आज जो सिनेरियो है, मुझे लगता है कंटिन्यूटी होना चाहिए.
गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी और पॉलिसी रिफॉर्म्स रहनी चाहिए। और गवर्नमेंट, इंडिया की जनता भी बहुत स्मार्ट हो गई है। स्टेट में मे बी आप आगे पीछे कर सकते हैं, बट सेंटर में लोगों को एक स्टेबल गवर्नमेंट चाहिए। और हर व्यक्ति जानता है देश का कि जियोपॉलिटिकली एक बहुत अलग सा माहौल है, तो हमें एक स्ट्रॉन्ग नेता, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए। सो मतलब 100% कॉन्फिडेंस है तो कोई भी कभी कुछ नहीं बोल सकता, बट इस जिस हिसाब से सिनेरियो है, मुझे नहीं लगता इलेक्शन एक बहुत बड़ा मेजर इम्पेडिमेंट आएगा। अगर आज आप यहाँ ही पोल लेते हो 1000 लोगों में, आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा कि 2024 क्या होने का है। तो क्या हम उसके लिए वेट करें, या हमें जब मार्केट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है और सारे नेगेटिव्स धीरे धीरे प्राइस इन हो रहे हैं, फ्रॉथ निकल रहा है, फिर टाइमिंग करना मेरे बस की बात तो नहीं है। कोई कर पाए तो बहुत बढ़िया बात है। मैं तो वैल्यू देखता हूँ, जब मांग सबसे ज्यादा रहती है मार्केट में तभी आपको बार्गेन्स मिलते हैं। और अगर वो बार्गेन को आप उस समय छोड़ दो, वो फुल टॉस को छक्का मारने का छोड़ दो, तो फिर मजा, फिर 1-2 रन पर आपको संतुष्ट करना पड़ेगा। तो फुल टॉस बहुत कम बार आते हैं, और उस फुल टॉस को आपको यूज करना है छक्के लगाने के लिए। Okay, sir. So there are lots of other question as well, but I शायद found शायद आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए सर, आप अपना वीडियो बंद कर दीजिए, आपकी आवाज बहुत कट रही है। yeah. Can you hear me now properly, sir? Yeah. So आप प्रॉपर है, क्योंकि उस समय yeah, आपके yeah, yeah. वीडियो के कारण लग रहा है बैठ। No problem. So one of the interesting questions somebody is asking regarding this US yield curve and other factors which are in US, and there are talks on going on. There is a major recession is waiting for us in next 6 to 12 months. So what is your view in that, sir? हाँ, मुझे भी लग रहा है कि डिमांड में काफी बड़ा कंट्रैक्शन हो रहा है, लोग उसे समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन एक चीज अच्छी है कि इस बार टेक सेक्टर में प्रॉब्लम ज्यादा है और स्टार्टअप वर्ल्ड में प्रॉब्लम ज्यादा है, बिकॉज कॉस्ट ऑफ मनी का इक्वेशन चेंज हो गया है। ये आपको ये समझना बहुत जरूरी है। 1 साल पहले अगर आपको 5% रिटर्न चाहिए था यूएस में, तो आप जंक बॉन्ड में निवेश कर रहे थे। आज अगर आपको 5% चाहिए, तो आपको यूएस की 6 महीने की ट्रेजरी बिल दे दे रही है। इसका मतलब आने वाले समय में जो क्रेजीनेस चल रहा था, कोई भी पी पर स्टॉक्स ले रहे थे, कोई भी वैल्यूएशन में स्टार्टअप को वैल्यू कर रहे थे, वो हिस्ट्री हो गई है। और ये इसका पेन आने वाले समय में आपको दिखाई देगा, बिकॉज मनी विल नॉट बी इजीली अवेलेबल टू एवरीबडी। तो कॉस्ट ऑफ मनी हैज गॉन अप, एंड उसका आपको कहीं ना कहीं असर डिमांड पर भी दिखेगा। लेकिन एक अच्छी चीज क्या है कि सामने ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, चाहे वो कैपिटल गुड्स हो, उनकी अगर आप कमेंट्री सुनो, तो वहां पर कोई डिमांड स्लो डाउन नहीं है। तो ये कहीं कहीं ना कहीं के शेप्ड काइंड ऑफ है, एक ठीक कर रहा है, एक खराब कर रहा है। और इसलिए बड़ी रिसेशन की संभावना नहीं है, बट डिमांड स्लो डाउन डेफिनेटली होगा। और हमारे हिसाब से एक हाइक फेड और मैक्सिमम करेगा, उसके बाद फेड एक लंबी पॉज पर चले जाएगा। और अगर आप हिस्ट्री निकाल कर देखो लास्ट 20-25 साल की, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग एनालिसिस आता है कि जब भी फेडरल और सेंट्रल बैंकर्स एक बड़ी रेट हाइक के बाद पॉज करते हैं, तो मार्केट में एक रैली बनता है। और उसके बाद जब वो पहली रेट कट करते हैं, क्योंकि डिमांड स्लो डाउन होता है, ग्रोथ पर कंसर्न आने लगते हैं, और जब वो पहली रेट कट करते हैं तो मार्केट बहुत जोर से गिरता भी है। तो हमें लग रहा है कि एक रिलीफ रैली अभी आएगी, मे बी, क्योंकि लोगों ने ये बिल्ट इन करना चालू कर दिया है। और आरबीआई ने, आपने देखा 2 दिन पहले कि उन्होंने सरप्राइज पॉज किया। और मुझे लगता है कई सारे सेंट्रल बैंक अब नेक्स्ट एक हाइक के बाद मैक्सिमम पॉज की तरफ चले जाएंगे। तो एक रिलीफ रैली ग्लोबली बनेगी, और उसके बाद अगर वो जब रेट काटना चालू करेंगे, तो एक टेम्पररी सेटबैक मार्केट के लिए आ सकता है। और दैट्स व्हाई आई से कि नेक्स्ट 3-6 महीना बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है मार्केट के लिए। अपने आप को रेडी रखें, अपने आप को होमवर्क करके तैयार रखें, और जिस भी समय अगर मौका मिले, उस समय बटन दबाने से आप ना चुकें। और सेकंड, कि भाई अगर वो सब नहीं कर पाए, तो नेक्स्ट 6-8 महीने की एसटीपी करके छोड़ देवे, क्योंकि इसका जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है वो नेक्स्ट ईयर और उसके ईयर आफ्टर मिलने वाला है। तो थोड़ा पेशेंस 2 साल का हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि यूएस में स्लो डाउन रियल में है,
उसका इम्पैक्ट आपको नेक्स्ट 3-6 महीने में दिखेगा। और कहीं ना कहीं यूएस मार्केट उसको लास्ट ईयर आपने देखा प्राइसिंग करना स्टार्ट किया है। पूरी तरीके से प्राइसिंग नहीं हुई है बट होगी। Okay. So I think so. I'll take the last question for you, sir. The question is with regards to यस। the GDP growth, right? So you spoke about that GDP will become $4 trillion to $10 trillion. So the rate at which we are यस। growing, we will soon touching this number. So somebody is यस। asking, GDP growth is not widespread. The in this country, in our country, basically the rich are getting richer and richer, and the last person who's living in this country is not getting benefited out of any such developments which are happening nowadays. Although it's very good for the overall numbers in this country, but I don't think so that number is helping everyone in this country. Somebody is asking this question. So any comment on this, sir? Right? Why is it so, and how why do you think so? This will become so big without the support of the last man in this country. सो अगर ये नंबर देखते हैं जो भी 8-10 ट्रिलियन की जीडीपी होगी, तो मैं एक नंबर देखता हूँ कि मैं साइज ऑफ जीडीपी नहीं देखता हूँ। मैं ये देखता हूँ कि पर कैपिटा जीडीपी कितना होगा। आज हम $2300-2400 पर है, और अगर ये मेरा अनुमान सही हुआ 8-10 ट्रिलियन की जीडीपी की, तो ये नंबर $5600 पर होगा। तो क्लियरली सब जन कहीं ना कहीं बेनिफिट करेंगे। और लास्ट 15-20 साल में हमने देखा है कि जैसे जैसे जीडीपी बढ़ी है, तो जो मिडिल क्लास वाला जो पिरामिड में पूरा बेली है, वो कहीं ना कहीं बढ़ा ही है। और जितने लोग पॉवर्टी में थे, वो आज के दिन 15 साल 20 साल पहले और आज के दिन नंबर में काफी बड़ा रिडक्शन है। सो कई हद तक मैं पूरे तरह से सहमत नहीं होगा, लेकिन ये भी बोलना गलत होगा कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ नहीं हुआ है। और ये इंडिया का फिनोमेना नहीं है। आप वर्ल्ड ओवर देख लो तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि 1 या 2% लोग 90% वेल्थ को कंट्रोल कर रहे हैं आज वर्ल्ड के। तो ये तो फैक्ट है। मतलब ये तो खाली देश का नहीं, पूरे विश्व का ये एक बहुत बड़ा टॉपिक पर पूरा विश्व सोच रहा है कि इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ को कैसे कम करें। बट कहीं ना कहीं इंडिया में अगर आप बॉटम ऑफ द पिरामिड में जाते हो, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। जैसे मैंने आपको पूरा आईटी स्टैक के बारे में बताया। अब वो चाहे वो मुंबई में रहने वाला व्यक्ति हो या एक छोटे से गांव में रहने वाला व्यक्ति हो, आज वो भी मोबाइल यूज कर रहा है। उसके पास भी सारी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसके पास भी आधार कार्ड डिजिटल आ रहा है, उसके पास भी वैक्सीन एक छोटे से गांव तक पहुंचा है, जो आधार कार्ड और मोबाइल पर वो अपने आप को वैक्सीनेट करा पाया। कोई भी कंट्री में आप ये एग्जाम्पल नहीं देख पाओगे। सेकंड, अगर आप मेरी बात सोचो कि आप मैं सब कुछ जो भी बोला लास्ट 1 घंटे में मैंने बकवास की। आप अपने आप गूगल में जाइए, मिनिस्ट्री के जल जो वाली वेबसाइट है उस पर जाइए, और आप खुद देख पाएंगे कि एवरी सेकेंड कि कितने घरों में पूरे इंडिया में, चाहे वो गांव हो, टियर 3 टियर 4, छोटे से छोटे जिले हों, वहां पर पाइप वाटर पहुंच गया है। ये नंबर करीबन 6-7 साल पहले 3 करोड़ घर थे जहां पाइप वाटर पहुंचता था। आज वो नंबर 9.5 करोड़ है, और एवरी मिनट इट इज इंक्रीजिंग। विच एवर यू कैन वॉच इट लाइव ऑन द वेबसाइट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ वाटर। सो आप मेरे ऊपर ना विश्वास करके आप जो हो रहा है उस पर देखें कि ग्राउंड लेवल पर क्या हो रहा है। आप सब ये अग्री करेंगे कि रोड्स की जो क्वालिटी है पूरे हाईवे पर, ओवरऑल कनेक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। फ्लाइट की कनेक्टिविटी बहुत ज़्यादा बेटर हो गई है। रेलवेज में अगर आप स्टेशन पर जाओ, वंदे भारत में जाओ, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस है। तो ये सब अगर आप देखें ग्राउंड लेवल पर हो रहा है, और इसके बेनिफिट खाली ऊपर वाले जो पैसा बनाया वो नहीं है, पूरा देश है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ऑब्वियसली इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ पूरे वर्ल्ड में एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इंडिया पे जो काम हो रहा है, और जब ये जीडीपी 8-10 ट्रिलियन जाएगी, तो जो मिडिल क्लास वाला बेली होगा वो सबसे बड़ा हो जाएगा। और ये अनुमान किया जा रहा है 2047 तक जब हम 100 वर्ष अपनी बनाएंगे, 100 ईयर बनाएंगे, तो वर्ल्ड की 21% ऑफ मिडिल क्लास इंडिया में रिसाइड करेगी। वर्ल्ड की 20% ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इंडिया में रिसाइड करेगी।
और ये कोई बड़ा गणित नहीं है। आप 10-11% की जीडीपी ग्रोथ की गणित करो तो आप खुद पहुंच जाओगे, जिसमें कि 5-5.5% रियल जीडीपी होगा और 4-4.5-5% का हमारा इन्फ्लेशन हमेशा रहा है वो रहेगा। तो अगर हम 10.5-11% की नॉमिनल जीडीपी से भी ग्रो करें तो ये नंबर अचीव करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। Yes, rightly said, sir. So first of all, sir, we trust what you said, right? So be it आप NJ. आप वीडियो बंद कर देंगे तो आपका आवाज क्लियर आएगा। Yeah. I know. What we are you are saying आप कंटिन्यू। is true, and I believe my partners also believe the way in which you people are giving the presentation and just sharing this data points, right? So you spoke यस। very good important points which will really help us to grow our business, and this will really help us to boost the confidence of our partners. And on behalf of my partners, I want to thank you, Pankaj sir. खाली एक uh, ही चीज बोलना चाहूंगा लास्ट में yeah. कि यू नो फ्रेंड्स, 1993 से लेके 2023 करीब 30 साल हो गए। एंड अगर आप 30 साल को अपने सामने ऑफिस में बैठ के या कहीं भी आप बैठे हो, आप पेपर में लिखो तो 93 में हर्षद मेहता हुआ, उसके बाद एशियन क्राइसिस हुई, पोखरन हुआ, चंद्रशेखर वीपी सिंह हुआ, अटल वाजपेयी आए, फिर उसके बाद 2000 का आपने टेक बबल क्राइसिस देखा, 9/11 देखा, वर्ल्ड टावर देखा, और फिर एक रैली देखी 3-4 साल की, 2008 में लीमन ब्रदर्स देखा, उसके बाद आपने यूरोपियन क्राइसिस देखा, उसने आपने ऑयल क्राइसिस देखा, दुबई देखा, लिबिया देखा, प्रॉब्लम्स देखा, जीएसटी देखा, डीमॉन देखा, और गवर्नमेंट हारते हुए देखा, नई गवर्नमेंट आते हुए देखा, 2013 का डिवैल्यूएशन देखा रुपी का, और फाइनली जो अग्नि परीक्षा थी वो आपने कोविड देखी। उसके बाद भी ये 30 साल में मार्केट ने आपको 13-14% कंपाउंडिंग रिटर्न दिया। आज एक भी साल अगर आप उस समय अपने आप को रिवाइंड करें तो मार्केट ने आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं दिया था कि आप आज निवेश करो। और सेम चीज नेक्स्ट 10 साल रहने वाला है। कोई भी साल आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि आप बोलोगे अब ये समय है निवेश करने का। बट जिस लास्ट 30 साल में देखा वो नेक्स्ट 10-15 साल में भी होगा कि हर साल आपको कोई ना कोई इवेंट बॉक डाउन करेगा, वोलेटिलिटी रहेगी, आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि निवेश करना चाहिए, बट फाइनली मार्केट कंपाउंडिंग आपको सरप्राइज करेगी। सो जस्ट कीप द ब्रॉड थॉट इन माइंड। ब्रॉड चेंजेस जो आपकी जिंदगी में हो रहे हैं, आपके इर्द गिर्द हो रहे हैं, उसके आप अलर्ट रहिए। जब आप अलर्ट रहेंगे तो आप उस चेंजेस को वेल अप्रिशिएट कर पाएंगे, और आप उसके आपकी जो पूरी इन्वेस्टमेंट थॉट प्रोसेस है वो उसके अंदर अपने आप रिफ्लेक्ट करेगी। मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप पास्ट में भी देखो तो कोई भी साल लास्ट 30 साल में ऐसा नहीं गया जहाँ इवेंट नहीं हुआ हो और आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और नेक्स्ट 15-20 साल भी यही रहने वाला है। लेकिन जो डिसिप्लिन रहेगा, जो बड़ी स्टोरी पर बिलीव करेगा, फाइनली हमें लगता है कि वही रिटर्न बना के जाएगा। Right. So there are many questions, Pankaj sir, but I think so questions are interrelated, right? So somebody is asking questions on what will be the impact of El Nino effect. Somebody is asking with regard to Ukraine war, which is not ending. So if you want to answer, then you can answer all of them. Otherwise, we I think so. We suppose we have already answered. मैंने काफी चीजों को मैंने काफी चीजों को कवर ऑलरेडी कर ली है। और मैं यही बोलना चाहूंगा फ्रेंड्स कि बहुत कुछ हो रहा है, जियो पॉलिटिकली एक बड़ा डिसऑर्डर हो रहा है। 2020 के बाद विश्व दो भागों में डिवाइड हो गया है। एक बाइपोलर वर्ल्ड पर हम लिव कर रहे हैं। तो मतलब ऊपर नीचे तनाव, जियोपॉलिटिकल सिक्योरिटी ये बहुत रहने वाला है। ये नई दुनिया पर हम ऑलमोस्ट आप समझ लो प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रूस एक साइड पर है, चाइना एक साइड पर है, यूएस एक साइड पर है, इंडिया न्यूट्रल के टेरिटरी पर अपने आप को कर रहा है। इस समय अगर देश में स्टेबिलिटी नहीं रही पॉलिटिकली तो कहीं ना कहीं नेविगेट करना मुश्किल होगा। और हम सबका दायित्व बनता है कि आने वाले नेक्स्ट 12 महीने बाद जब
विश्व अपने यहाँ इलेक्शन हो तो हम राइटली अपने गवर्नमेंट्स को चूज करें जो हमें इस टर्मोइल वर्ल्ड में नेविगेट करके आगे बढ़ाएगी. बट लेट्स सी, माय सेंसेस की ये सारे चेंजेस जो हुए हैं ये बहुत अच्छे चेंजेस हैं, रिफॉर्म चेंजेस हैं और ये इंडिया को एक अलग लेवल और पोजीशन पर ले जाएंगे. और ये हमारे सामने हुआ ना, 2013-14 में हम 10वें नंबर पर जीडीपी पर थे, आज 5वें पर हैं और होपफुली नेक्स्ट ईयर हम चौथे नंबर पर होंगे और होपफुली 2027-28 पर हम तीसरे नंबर पर होंगे जापान को ओवरटेक. ये हमारे सामने हो रहा है. और कई सारी चीजें जो मैंने आपको बताई, आधार का, मोबाइल का, कनेक्टिविटी, यूपीआई, विद इन सेकेंड्स यू कैन ट्रांसफर मनी टू एनीबडी इन द कंट्री टुडे. कहाँ ये सुविधा पूरे पूरे वर्ल्ड में आप देख लो, डेवलप्ड मार्केट्स में नहीं है. सो कई सारी चीजें को हम अप्रिशिएट नहीं कर रहे, हमारे सामने हो रही है. बट अगर ये आप ठीक से कभी सोचो तो इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं मार्केट कैप में आने वाले समय में दिखाई देगा. तो क्लियरली ये मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा है समय है और ये लास्ट 18 महीने का करेक्शन, टाइम करेक्शन हो गया है. मे बी नेक्स्ट 6-8 महीने और टाइम करेक्शन या एब्सोल्यूट प्राइस करेक्शन हो जाए, वो अच्छा बेस फॉर्म कर देगा हमारे 2024-25 के मार्केट के रिटर्न के लिए. Yes. So thank you, sir. Thank you, Pankaj sir, for your wonderful presentation and wonderful talk. And thank you all my partners who attended this beautiful session. And at NJ, it's our endeavor to bring lots of such good sessions for all of you. And we will keep coming with new interactive such sessions and such data points which will really help you to grow your business in a multi-fold manner. And we will be doing the same and hope you all need to trust only. You all need to trust the story of NJ, story of this country. India is growing, India is signing, which we all know that. Some कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में है, हमारे माइंड में है कि सब कुछ अच्छा है, but still we keep doubting. Right, we keep doubting with such small nuisances or some instances which happened on a day-to-day basis. So very rightly Pankaj sir said कि भाई ये पिछले आप 93 से यदि डेटा देखते हो तो 93 से लेके कितने सारे इंस्टेंसेस हुए, कितनी सारे घटनाएं हुई, उसके बावजूद भी मार्केट हैज ग्रोन 13 to 14%, right? So we all need to trust. So with this I think so we will end over here. So once again thank you to all. Thank you, Pankaj sir. Thank you, entire Kotak Mutual Fund team for this lovely presentation. Thank you, sir. Thank you. Good evening.